धन्यवाद। अब मैं मंच से विराजमान महानुभाव माननीय मंत्रीश्रियों, विधायक श्री, प्रमुख श्री एवं मेयर श्री से विनंती करूंगी कि वे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शाल, बुक एवं एक दुर्लभ छवि से उनका स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 20 वर्ष पहले 2003 में शिक्षा क्रांति की ज्योत प्रथम शाला प्रवेशोत्सव के द्वारा प्रज्वलित की थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कर कमलों द्वारा जिन बच्चों का पहली कक्षा में नामांकन करवाया था और विद्या आरंभ का बीज बोया था, वही बच्चे आज युवा वृक्ष बनकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, ऊर्जा, बैंकिंग जैसे विविध क्षेत्र में पद ग्रहण कर समाज और राष्ट्र निर्माण में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं। आज वे बच्चे, युवा धन हमारे साथ उपस्थित हैं और वे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे दुर्लभ तस्वीर से और साथ में उनकी देवी देव मोगरा जी से उनका आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने पहली कक्षा में शाला प्रवेशोत्सव में अपना नामांकन करवाया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री ए वखते आ दीकरा दीकरीओनी तत्कालीन मुख्यमंत्री ए वखते आ दीकरा दीकरीओनी आंगળી પકડી તેઓને પહેલા ધોરણમાં પ્રવેશ કરાવ્યો હતો। આ ક્ષણને આપણે ખૂબ તાળીઓ સાથે વધાવીએ। ધન્યવાદ। શિક્ષા એ દરેક માનવીનો મૂળભૂત અધિકાર છે અને આપણા ગુજરાત રાજ્યના દરેક વિદ્યાર્થીને સર્વશ્રેષ્ઠ માળખાકીય સુવિધામાં ગુણવત્તાસભર શ્રેષ્ઠતમ શિક્ષણ પ્રાપ્ત થાય તેવો મક્કમ અભિગમ જેઓનો છે તેવા આપણા ગુજરાત રાજ્યના સુકાની માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલને આવો ઉત્સાહભેર તેઓના ઉદ્બોધન માટે આમંત્રિત કરીએ। શ્રેષ્ઠ થી સર્વશ્રેષ્ઠના સૂત્રને ખરા અર્થમાં ચરિતાર્થ કરતા રૂપિયા 10,000 કરોડના રોકાણ સાથેના દેશના સૌથી મોટા શાળાકીય મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત જનપ્રિય જનનાયક કરોડો દેશવાસીઓનું ગૌરવ એવા આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री आचार्य देवव्रत जी, मारा साथी शिक्षण मंत्री श्री जीतुभाई वाघाणी, शिक्षण राज्य मंत्री श्री कुबेरभाई डिंडोर, श्री कीर्तिसिंह वाघेला, गांधीनगर मेयर श्री हितेशभाई मकवाणा, जिला पंचायत प्रमुख श्री दिलीपभाई पटेल, धारासभ्य श्री शंभुजी ठाकोर, संगठन सौ पदाधिकारीश्रीओ, उपस्थित सौ अधिकारीगण, विशाल संख्या में उपस्थित सौ विद्यार्थी मित्रों, प्रेस मीडिया मित्रों, सौने मारा नमस्कार। આજનો દિવસ ગુજરાત અને દેશના શિક્ષણ જગત માટેનો એક ઐતિહાસિક દિવસ છે। દેશના યશસ્વી વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે દેશના પહેલા એવા મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સનો શુભારંભ ગુજરાતની ધરતી ઉપર થઈ રહ્યો છે તેવા આ મહત્વપૂર્ણ પ્રસંગે વડાપ્રધાનશ્રી અને આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે આ મિશનની રૂપિયા 4,258 કરોડ ખર્ચે તૈયાર થનારી પ્રથમ તબક્કાની સુવિધાઓનું ખાતમુહૂર્ત થઈ રહ્યું છે। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં દેશના ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસીનો સુચારુ અમલ શરૂ થયો છે। વિશ્વ કક્ષાની ટેકનોલોજી સભર જ્ઞાનના અવસરો દેશની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં આપવાની તેમની નેમ છે। 5G ટેકનોલોજી હવે વિકાસની નવી ક્ષિતિજો ખોલી દીધી છે ત્યારે કુલ રૂપિયા 10,000 કરોડનું આ મિશન स्कूल ऑफ एक्सेलन्स एक सीमाचिन्ह रूप बनी रहशे। मान्य नरेन्द्रभाई हर हमेश कहे कि शिक्षण बनावे कंकरमांथी शंकर। गुजरात आज शिक्षण क्षेत्रे जे वैश्विक प्रतिष्ठा और ख्याति मेळवी छे
તેના મૂળમાં માન્ય શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીની રાજ્યમાં બાળકો અને યુવાનોના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટેની પ્રતિબદ્ધતાનો પરિશ્રમ છે. આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે ગુજરાતના શિક્ષણને આગળ લાવવા અથાગ પ્રયત્નો કર્યા છે. કન્યા કેળવણી, શાળા પ્રવેશોત્સવ, ગુણોત્સવ જેવા જન આંદોલનથી સમગ્ર શિક્ષણ વ્યવસ્થાને નવો વળાંક આપી તેમણે દેશને નવો રાહ ચીંધ્યો છે. આના પાઠ સ્વરૂપે ગુજરાતનો સ્કૂલ ડ્રોપ આઉટ રેટ જે 37% જેટલો હતો, જે 2 દાયકામાં ઘટીને 2 થી 3% સુધી આવી ગયો છે. બાળકોના ભાવિનું ઘડતર શ્રેષ્ઠતમ થાય તે માટે જ્ઞાન સેતુ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ધોરણ 2 થી આપણે અંગ્રેજી વિષયની શરૂઆત કરી છે. રાજ્યમાં પહેલાં માત્ર 27 યુનિવર્સિટી હતી. આદરણીય શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ગુજરાતના યુવાનોને ઘર આંગણે જ વિશ્વ કક્ષાનું શ્રેષ્ઠ શિક્ષણ આપવાનો નિર્ધાર કર્યો, જેના ફળ સ્વરૂપે આજે રાજ્યમાં 102 યુનિવર્સિટી છે અને તેમાં પણ ઘણી સ્પેશિયલાઇઝ યુનિવર્સિટીઓ છે. આપણે રાજ્યના બાળકોને વિશ્વ કક્ષાનું સ્માર્ટ એજ્યુકેશન પૂરું પાડવું છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈના પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણાથી દેશ અને ગુજરાત શિક્ષણ ક્ષેત્રે સમય સાથે ચાલી રહ્યા છે. નવી એજ્યુકેશન પોલિસીના અમલથી તેમણે ઉચ્ચ શિક્ષણ માતૃભાષામાં આપવાની હિમાયત કરી છે. તાજેતરમાં જ મધ્યપ્રદેશમાં હિન્દી ભાષામાં મેડિકલનો અભ્યાસક્રમ શરૂ થયો છે. એ દિવસો દૂર નથી જ્યારે આપણે ત્યાં પણ મેડિકલ અને એન્જિનિયરિંગનો અભ્યાસક્રમ માતૃભાષા એટલે ગુજરાતીમાં શરૂ થશે. ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓને સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ અને ડિજિટલ માધ્યમથી વધુ સારું શિક્ષણ મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકારે વડાપ્રધાનશ્રીની પ્રેરણાથી અનેક નવતર આયામો અપનાવ્યા છે. છેલ્લા 3 વર્ષમાં જ્ઞાનકુંજ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત રાજ્યમાં 16,000 જેટલા સ્માર્ટ વર્ગખંડો શરૂ થયા છે. આપણું ગુજરાત પ્રાથમિક સ્કૂલનું મૂલ્યાંકન કરનારું દેશનું પહેલું રાજ્ય છે. રાજ્યના વિદ્યા સમીક્ષા કેન્દ્ર શિક્ષણની ગુણવત્તા સુધારણા અને શ્રેષ્ઠતમ પ્રણાલી માટે શિક્ષણ વ્યવસ્થાપનને સુદૃઢ કરનારું ટેકનોલોજી આધારિત સેન્ટર બન્યું છે. મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સેલન્સ આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીના હસ્તે લોન્ચ થયું છે. તે પણ આપણા માટે ગૌરવની વાત છે. રાજ્યની અંદાજે 15,000 જેટલી પ્રાથમિક અને 5,000 જેટલી માધ્યમિક શાળાઓને વિશ્વ સ્તરીય માળખાકીય અને ડિજિટલ સુવિધાઓ પૂરી પાડશે. આ પ્રોજેક્ટ હેઠળ આગામી વર્ષોમાં 50,000 વર્ગખંડ, 1 લાખથી વધુ સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, 20,000 કોમ્પ્યુટર લેબ અને 5,000 સ્ટેમ્પ લેબ નિર્માણ પામવાના છે. આ પ્રોજેક્ટ દેશનો સૌથી મોટો સ્કૂલ ટ્રાન્સફોર્મેશન કરનારો પ્રોજેક્ટ બની રહેશે તેવો મને વિશ્વાસ છે. દેશ આદરણીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં અમૃતકાળમાં પ્રવેશ્યો છે. આ અમૃતકાળનું એક લક્ષ્ય છે વિકસિત ભારતનું નિર્માણ કરવું. આજે એ લક્ષ્ય સિદ્ધિ હાંસલ કરવાનો એક મહત્વનો પાયો નખાયો છે. તે દેશમાં શિક્ષણ ક્રાંતિ લાવશે એવા વિશ્વાસ સાથે વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, આપના પ્રોત્સાહનપૂર્ણ ઉद्बोधन માટે આપનો ખૂબ ખૂબ आभार मानिए છીએ. माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का सपना, विश्व गुरु का सपना पूरा करने के लिए मूलभूत स्कूली शिक्षा अत्यंत आवश्यक है. ये सपना सार्थक करने के संकल्प के साथ गुजरात सरकार शुरू करने जा रही है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस. सभी शालाओं को विश्व स्तरीय भौतिक एवं डिजिटल सुविधाओं से गुणवत्ता युक्त शिक्षा से सुसज्जित करने जा रहे हैं. तो आइए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से नम्र निवेदन करें कि वे रिमोट से मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का विधिवत शुभारंभ करें. आज रे निशाल में तो कक्को ने कड़ो खूंजो रे जो एवी रूम झुमती कविताओं सहेली ये मारा गणतर मारे. गुजरात के शिक्षण के क्षेत्र में क्रांति का पर्याय, विद्यार्थियों की प्रगति का नया अध्याय, नवीनतम दृष्टिकोण और अभिनव प्रयास, विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय अभ्यास, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ
मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन। हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी हमेशा से ही शिक्षण के क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रहे हैं। अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए मुख्यमंत्री की भूमिका में उन्होंने गुजरात के शिक्षण विकास को मिशन मोड पे आगे ले जाने की ठान ली और शाला प्रवेशोत्सव, कन्या केलवणी महोत्सव और गुणोत्सव जैसी अनेक अभिनव योजनाओं को अमल में लाकर एवं गुणवत्ता युक्त शिक्षण की ओर बढ़ने के लिए शिक्षकों की पारदर्शक भर्ती और जरूरी मालखाकीय सुविधाएं सुनिश्चित कराते हुए उन्होंने गुजरात को शिक्षण क्षेत्र में अविरत प्रगति की नई दिशा दी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए गुजरात सरकार ने छात्रों को श्रेष्ठतम शिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए भगीरथ प्रयास किए और पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए डेटा आधारित पहल की एक श्रृंखला शुरू की, जिसमें शामिल है शाला प्रवेशोत्सव 2.0, गुणोत्सव 2.0, शिक्षक एवं विद्यार्थी के ऑनलाइन अटेंडेंस, कक्षा 3 से 12 केंद्रीकृत सत्रांत परीक्षा और इन परीक्षा के हर विद्यार्थी के हर प्रश्न की डेटा एंट्री की जाती है, जिसकी मदद से हर साल 500 करोड़ से अधिक डेटा पॉइंट्स विद्या समीक्षा केंद्र पर एकत्रित किए जाते हैं। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिसिस जैसी आधुनिक तकनीक की सहायता से एकत्रित किए गए डेटा द्वारा प्रत्येक जिले, ब्लॉक, शाला और विद्यार्थियों की मॉनिटरिंग की जाती है और विद्यार्थियों को लर्निंग आउटकम बेस्ड रिपोर्ट कार्ड भी इसी के आधार पर प्रदान होते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग से आगे बढ़कर गुजरात अब प्रिडिक्टिव एनालिसिस की तरफ जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों के सीजनल माइग्रेशन का प्रिडिक्शन करके लर्निंग लॉस को कम किया जाएगा। साथ ही साथ विद्यार्थी का संभवित ड्रॉप आउट प्रिडिक्शन करके उसे भी निवारा जाएगा। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से 100% नामांकन, नियमित हाजिरी और विद्यार्थियों के ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग आउटकम्स सुनिश्चित करने की दिशा में असरकारक काम किया जा रहा है और इन सभी प्रयासों के कारण पिछले 4 साल में 11.5 लाख से अधिक छात्र निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ये आधुनिक केंद्र पूरे देश में बड़े परिवर्तन ला सकता है। ये विद्या समीक्षा केंद्र पूरे देश को दिशा दिखाने वाला सेंटर बन गया है। इन सभी कदमों से मिली सफलता के उपरांत वर्तमान और भविष्य की स्थिति का आकलन करके शिक्षा की गुणवत्ता में और भी सुधार करने का गुजरात सरकार ने निश्चय किया। गुजरात की तमाम 40,000 सरकारी स्कूलों को सक्षम बनाने और उनमें पढ़ने वाले 70 लाख विद्यार्थियों और करीब 2,50,000 शिक्षकों को भौतिक सुविधाओं का लाभ प्रदान करने और शिक्षा की गुणवत्ता में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए शुरू किया जा रहा है मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस। अब बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी को साथ लेकर 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली एजुकेशन सिस्टम भी उतनी ही जरूरी है। इसके तहत देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के विजन को साकार करते हुए गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल द्वारा सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मिशन में 120 से अधिक छात्रों वाले राज्य के तमाम सरकारी स्कूल्स यानी कुल 15,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों को और 5,000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक सरकारी स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस में परिवर्तित किया जाएगा, जिसके तहत बनाए जाएंगे 50,000 नए क्लासरूम्स, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम्स, 20,000 कंप्यूटर लैब्स, 5,000 स्टेम लैब्स, सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन सुविधाएं और पर्यावरण प्रयोगशाला से युक्त ग्रीन स्कूल्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए संसाधन कक्ष, खेल के उपकरण, सीसीटीवी कैमरा, हर कक्षा के लिए वर्गखंड और हर वर्गखंड के लिए शिक्षक की उपलब्धि, साथ ही करियर मार्गदर्शन और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए तालीम भी दी जाएगी। इन स्कूल्स में 21वीं सदी के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक द्विभाषी एक्सीलेंस पाठ्यक्रम द्वारा कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
अधिक से अधिक छात्र स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का लाभ उठा सके। इस हेतु से स्कूल ट्रांसपोर्टेशन सेल की भी स्थापना की जाएगी। निःशुल्क परिवहन के माध्यम से छोटे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को नजदीकी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में दाखिला लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के एक विशेष नियंत्रण कक्ष से पसंद की गई स्कूलों की गहन और निरंतर टारगेटेड मॉनिटरिंग की जाएगी और राज्य भर के प्रत्येक छात्र के लर्निंग आउटकम का विश्लेषण होगा। गुजरात स्कूल क्वालिटी एक्रेडिटेशन काउंसिल यानी GSQAC की टीम द्वारा इन स्कूलों का मूल्यांकन होगा और एक वर्ष में 3000 स्कूल्स और 4 वर्ष के अंत तक कुल 20,000 स्कूलों को स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर प्रमाणित किया जाएगा। 10,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन है, जिसे वर्ल्ड बैंक एवं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का सहयोग प्राप्त हुआ है। ये आजादी का अमृत काल है। हम आजादी के 75वें साल में हैं, जब भारत 100 साल की आजादी का समारोह बनाएगा। तब का भारत कैसा होगा, इसके लिए हमें अभी से काम करना होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने की नींव में है एक मजबूत और ठोस शिक्षा प्रणाली, और इसे सार्थक करने के लिए मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा कटिबद्ध है गुजरात सरकार। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है कि आज माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल की उपस्थिति में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ किया जा रहा है। छात्रों की सर्वांगीण प्रगति का संकल्प, शिक्षण की होगी जैसे कायाकल्प, स्कूलों और शिक्षकों का होगा विकास, एक उज्जवल भविष्य का मिलेगा विश्वास। श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, देश का सबसे बड़ा स्कूली शिक्षा मिशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस का आज विधिवत शुभारंभ करने के लिए गुजरात की जनता आपको कोटि कोटि वंदन करती है और आभार व्यक्त करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के द्वारा शिक्षा को नया आयाम देकर वैश्विक फलक पर राष्ट्र को सशक्त पहचान दिलाने वाले आधुनिक भारत के स्वप्न दृष्टा एवं दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री को आइए तालियों की गड़गड़ाहट से उनके संबोधन के लिए हम आमंत्रित करते हैं। नमस्ते, केम छो बदा? हाँ, હવે કઈ ગરમી આવી। गुजरात के गवर्नर श्री आचार्य देवव्रत जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, शिक्षा जगत के सभी दिग्गज, गुजरात के होनहार विद्यार्थी मित्र, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज गुजरात अमृत काल की अमृत पीढ़ी के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा कदम उठा रही है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात के निर्माण की तरफ ये एक मील का पत्थर सिद्ध होने वाला है। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस, इसके शुभारंभ पर मैं सभी गुजरात वासियों को
सभी अध्यापकों को, सभी युवा साथियों को, इतना ही नहीं आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हाल ही में देश ने मोबाइल और इंटरनेट की 5th जनरेशन यानी 5G के युग में प्रवेश किया है। हमने इंटरनेट की 1st G से लेकर 4G तक की सेवाओं का उपयोग किया है। अब देश में 5G बड़ा बदलाव लाने वाला है। हर जनरेशन के साथ सिर्फ पीढ़ी नहीं बढ़ी है, बल्कि हर जनरेशन ने टेक्नोलॉजी को, जीवन को करीब से करीब हर पहलू के साथ जोड़ा है। साथियों, इस प्रकार हमने देश में स्कूलों की भी अलग अलग जनरेशन को देखा है। आज 5G, स्मार्ट सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीचिंग से आगे बढ़कर हमारी शिक्षा व्यवस्था को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसकी ताकत को भी हमारे छोटे छोटे बाल साथी, हमारे विद्यार्थी स्कूलों में बड़ी आसानी से अनुभव कर पाएंगे। मुझे खुशी है कि इसके लिए गुजरात के इस मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर पूरे देश में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण और सबसे पहला कदम उठा दिया है। मैं भूपेंद्र भाई को, उनकी सरकार को, उनकी पूरी टीम को भी साधुवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, बीते 2 दशकों में गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो अभूतपूर्व है। 20 साल पहले हालत ये थी कि गुजरात में 100 में से 20 बच्चे स्कूल ही नहीं जाते थे, यानी 5वां हिस्सा शिक्षा से बाहर रह जाता था। और जो बच्चे स्कूल जाते थे उनमें से बहुत सारे बच्चे 8वीं तक पहुंचते पहुंचते ही स्कूल छोड़ देते थे। और इसमें भी दुर्भाग्य था कि बेटियों की स्थिति तो और खराब थी। गांव के गांव ऐसे थे जहां बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था। आदिवासी क्षेत्रों में जो थोड़े बहुत पढ़ाई के केंद्र थे, वहां साइंस पढ़ाने की सुविधाएं तक नहीं थी। और मुझे खुशी है, मैं जीतू भाई को और उनकी टीम की कल्पकता को विशेष रूप से बधाई देता हूं। शायद आप वहां से देख रहे थे क्या हो रहा है, मंच पे समझ नहीं आया होगा, लेकिन मेरा मन करता है मैं बता दूं। હમણાં જે બાળકો મને મળ્યા એ બાળકો હતા જ્યારે 2003માં પહેલો શાળા પ્રવેશોત્સવ કર્યો હતો અને હું આદિવાસી ગામોમાં ગયો હતો। 40-45 ડિગ્રી ગરમી હતી। 13, 14, 15 જૂનના એ દિવસો હતા અને જે ગામમાં બાળકોનું ઓછામાં ઓછું શિક્ષણ છે ને દીકરીઓનું ઓછામાં ઓછું શિક્ષણ એ ગામમાં ગયો હતો અને પહેલી વાર એ ગામમાં મેં કહ્યું હતું હું તમારે ત્યાં ભિક્ષા માંગવા આવ્યો છું અને મને તમે ભિક્ષામાં વચન આપો
કે મારે તમારી દીકરીને ભણાવવી છે ને તમે તમારી દીકરીને ભણાવશો. અને એ પહેલા કાર્યક્રમમાં જે બાળકોને હું આંગળી પકડીને નિશાળે લઈ ગયો હતો એ બાળકોના આજે મને દર્શન કરવાનો અવસર મળ્યો. આ પળે હું સૌથી પહેલા એમના માતા પિતાને વંદન કરું છું. કારણ એમણે મારી વાતને સ્વીકારી. હું તો શાળાએ લઈ ગયો પણ એમને એના મહાત્મ્યને સમજ્યું અને એમણે બાળકોને જેટલું ભણી શક્યા એટલા ભણાયા અને આજે પોતાના પગ પર ઊભા થઈને આપણી પાસે જોવા મળ્યા. મને એ બાળકોને મળીને ખાસ કરીને માતા પિતાને વંદન કરવાનું મન થાય છે. અને ગુજરાત સરકાર જીતુભાઈને અભિનંદન આપું છું કે મને આ બાળકોને મળવાનો અવસર મળ્યો આજે. જેમને એકડિયું ભણાવવા માટે आंगड़ी पकड़ीने लई जवानुं मने सौभाग्य मळ्युं हतुं. साथियों, इन 2 दशकों में गुजरात के लोगों ने अपने राज्य में शिक्षा व्यवस्था का कायाकल्प करके दिखा दिया है. इन 2 दशकों में गुजरात में 1.25 लाख से अधिक नए क्लासरूम बने, 2 लाख से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए गए. मुझे आज भी वो दिन याद है जब शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी वो महोत्सव उसका आरंभ हुआ था. प्रयास ये था कि बेटा बेटी जब पहली बार स्कूल जाएं तो उसे उत्सव की तरह मनाया जाए. परिवार में उत्सव हो, मोहल्ले में उत्सव हो, पूरे गांव में उत्सव हो, क्योंकि देश की नई पीढ़ी को हम शिक्षित और संस्कारित करने का आरंभ कर रहे हैं. मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने गांव गांव जाकर खुद सभी लोगों से अपनी बेटियों को स्कूल भेजने का आग्रह किया था और परिणाम ये हुआ है कि आज गुजरात में करीब करीब हर बेटा बेटी स्कूल पहुंचने लगा है. स्कूल के बाद अब कॉलेज जाने लगा है. साथियों, इसके साथ ही हमने शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सबसे ज्यादा बल दिया, आउटकम्स पर बल दिया. इसलिए हमने प्रवेशोत्सव के साथ साथ गुणोत्सव की शुरुआत की थी. क्वालिटी एजुकेशन. मुझे अच्छी तरह याद है कि गुणोत्सव में हर एक विद्यार्थी का, उसकी क्षमताओं का, उसकी रुचि का, उसकी अरुचि का विस्तार से आकलन किया जाता था. साथ साथ शिक्षकों का भी आकलन होता था. इस बहुत बड़े अभियान में स्कूली व्यवस्था के साथ साथ हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे अधिकारी, इवन पुलिस के अधिकारी, फॉरेस्ट के अधिकारी, वे भी 3 दिन के लिए गांव गांव स्कूलों में जाते थे, हिस्सा बन जाते थे अभियान का. और मुझे बहुत खुशी है कि कुछ दिन पहले जब मैं गांधीनगर आया था तो उस गुणोत्सव का एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्जन विद्या समीक्षा केंद्र के रूप में मुझे देखने को मिला. विद्या समीक्षा केंद्रों की आधुनिकता देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा. और हमारी भारत सरकार ने, हमारे शिक्षा मंत्री ने देश भर के शिक्षा मंत्रियों को और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यहां गांधीनगर बुलाया था और सबके सब ये विद्या समीक्षा केंद्र को घंटों तक उसका अध्ययन करने में लगे थे. और बाद में भी राज्यों से डेलीगेशन आते हैं और विद्या समीक्षा केंद्र का अध्ययन करके उस मॉडल को अपने राज्य में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं. गुजरात इसके लिए भी अभिनंदन का अधिकारी है. राज्य की पूरी स्कूली शिक्षा के
पल पल की जानकारी लेने के लिए ये एक केंद्रीय व्यवस्था बनाई गई है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। गुजरात के हजारों स्कूलों, लाखों शिक्षकों और करीब 1.25 करोड़ स्टूडेंट्स की यहां से समीक्षा की जाती है, उनको फीडबैक दिया जाता है। जो डेटा आता है उसका बिग डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो वॉल और ऐसी तकनीक से विश्लेषण किया जाता है। उसके आधार पर बच्चों को बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक सुझाव दिए जाते हैं। साथियों, गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही कुछ नया, कुछ यूनिक और बड़े प्रयोग करना ये गुजरात के डीएनए में है, स्वभाव में है। गुजरात में पहली बार टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन की स्थापना हमने की थी। चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, दुनिया में एकमात्र यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन। और उस खेल महाकुंभ का अनुभव देखिए, उसके कारण सरकारी मशीनरी को जो काम करने की आदत बन गई, गुजरात के युवा धन की खेल के प्रति जो रुचि बनी, ये जो इकोसिस्टम तैयार हुआ, उसका परिणाम है कि जब आज बहुत सालों के बाद राष्ट्रीय खेल महोत्सव गुजरात में हुआ, अभी पिछले सप्ताह, मैंने इतनी तारीफ सुनी है, क्योंकि मैं खिलाड़ियों के संपर्क में रहता हूं, उनके कोचिज में संपर्क में रहता हूं, ढेर सारी बधाइयां मुझे दे रहे हैं। मैंने कहा भैया बधाइयां मुझे न दो, आप गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात सरकार को दीजिए। ये सारा उनका पुरुषार्थ है, उनका परिश्रम है, जिनके कारण इतना बड़ा देश का खेल उत्सव हुआ। और सारे खिलाड़ी कह रहे थे कि साहब हम अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जाते हैं और जो हम हॉस्पिटैलिटी और व्यवस्था देखते हैं, गुजरात ने उसी मन लगा के योजनाएं बनाई, हमारा स्वागत सम्मान किया। मैं सचमुच में इस कार्यक्रम को सफल बना करके खेल जगत को गुजरात ने जिस प्रकार से प्रोत्साहित किया है, इस कार्यक्रम को होस्ट करके जो एक नए स्टैंडर्ड प्रस्तावित किए हैं, इसके लिए गुजरात ने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। मैं गुजरात के सभी अधिकारियों को, गुजरात सरकार को, गुजरात के खेल जगत के सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक दशक पहले ही गुजरात के 15,000 स्कूलों में टीवी पहुंच चुका था। 20,000 से ज्यादा स्कूलों में कंप्यूटर एडेड लर्निंग लैब्स, ऐसी अनेकों व्यवस्थाएं बहुत साल पहले गुजरात के स्कूलों का अभिन्न अंग बन गई थी। आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स और 4 लाख से अधिक टीचर्स की ऑनलाइन अटेंडेंस होती है। नए प्रयोगों के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत इन स्कूलों में 50,000 नए क्लासरूम, 1 लाख से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, इसको आधुनिक रूप में विकसित किया जाएगा। इन स्कूलों में आधुनिक डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो होगा ही, ये बच्चों के जीवन, उनकी शिक्षा में व्यापक बदलाव का भी अभियान है। यहां बच्चा को सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हर पहलू, हर पक्ष पर काम किया जाएगा। यानी विद्यार्थी की ताकत क्या है, सुधार की गुंजाइश क्या है, इस पर फोकस किया जाएगा। साथियों, 5G टेक्नोलॉजी, इस व्यवस्था और उसका लाभ बहुत आसान होने वाला है। और सरल शब्दों में किसी को समझाना है, सामान्य मानवी को यह लगता है कि पहले 2G था, 4G था, 5G हुआ। ऐसा नहीं है। अगर 4G को मैं साइकिल कहूं, बाइसिकल कहूं, तो 5G हवाई जहाज है। इतना फर्क है। टेक्नोलॉजी को अगर मुझे गांव की भाषा में समझाना है तो मैं ऐसा कहूंगा, 4G मतलब साइकिल,
5G मतलब आपके पास हवाई जहाज है, वो ताकत है इसमें। अब गुजरात को बधाई इसलिए है कि उसने इस 5G की ताकत को समझते हुए इस आधुनिक शिक्षा, इसका बहुत बड़ा मिशन एक्सेलेंसी के लिए किया है। ये गुजरात के भाग्य को बदलने वाली चीज है और इससे हर बच्चे को उसकी जरूरत के हिसाब से सीखने का मौका मिल पाएगा। इससे विशेष रूप से दूर सुदूर के गांवों के स्कूलों की पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी। जहां दूर बेस्ट टीचर की जरूरत है, आराम से इसे उपलब्ध हो जाएगा। बेस्ट का क्लास लेने वाला व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर होगा, ऐसा ही लगेगा जैसे मेरे सामने बैठ करके मुझे पढ़ा रहा है। हर विषय के बेस कंटेंट हर किसी के पास पहुंच पाएंगे। अब जैसे अलग अलग स्किल्स को सिखाने वाले श्रेष्ठ टीचर अब एक जगह से ही अलग अलग गांव शहरों में बैठे बच्चों को एक ही समय में वर्चुअली रियल टाइम में पढ़ा सकेंगे, सिखा सकेंगे। इसे अलग अलग स्कूलों में जो गैप अभी देखने को मिलता है वो भी काफी हद तक दूर होगा। आंगनवाड़ी और बाल वाटिका से लेकर कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियों तक ये आधुनिक स्कूल विद्यार्थियों के हर जरूरत को पूरा करेंगे। कला, शिल्प, व्यवसाय से लेकर कोडिंग और रोबोटिक्स तक हर प्रकार की शिक्षा छोटी उम्र से ही यहां उपलब्ध रहेगी। यानी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के हर पहलू को यहां जमीन पर उतारा जाएगा। भाई और बहनों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से पूरे देश में इसी प्रकार के बदलाव को आज केंद्र सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूल बनाने का भी फैसला किया। ये पायलट प्रोजेक्ट है। हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में इसका शुरुआत होगी, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा और साल भर के अंदर उसमें अगर कुछ कमियां हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत है, बदलती हुई टेक्नोलॉजी को उसके साथ जोड़ने की जरूरत है, तो उसमें बदलाव करके एक परफेक्ट मॉडल बना करके देश की सबसे ज्यादा स्कूलों में ले जाने का भविष्य में प्रयास किया जाएगा। ये स्कूल पूरे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए मॉडल स्कूल होंगे। केंद्र सरकार इस योजना पर 27,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस प्रकार क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस किया गया है, बच्चों को अपनी ही भाषा में बेहतर शिक्षा का विजन हो, उसको ये स्कूल जमीन पर उतारेंगे। ये एक प्रकार से बाकी स्कूलों के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का संकल्प लिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गुलामी की मानसिकता से देश को बाहर निकालकर टैलेंट को, इनोवेशन को निखारने का प्रयास है। अब देखिए, देश में क्या स्थिति बनाकर रख दी गई थी। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को इंटेलिजेंस का पैमाना मान लिया गया था, जबकि भाषा तो सिर्फ संवाद का, कम्युनिकेशन का एक माध्यम पर है। लेकिन इतने दशकों तक भाषा एक ऐसी रुकावट बन गई थी जिसने देश के गांवों में, गरीब परिवारों में प्रतिभा जो थी, जो प्रतिभा का भंडार था, उसका लाभ देश को नहीं मिल पाया। न जाने कितने ही प्रतिभाशाली बच्चे, देशवासी सिर्फ इसलिए डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बन पाए क्योंकि उनको जो भाषा समझ आती थी उसमें उनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिला। अब ये स्थिति बदली जा रही है। भारतीय भाषाओं में भी साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, इस पढ़ाई के विकल्प अब विद्यार्थियों को मिलना शुरू हो गया। गरीब मां पण छोकराने अंग्रेजी શાળામાં ન ભણાવી શકી હોય તો પણ દીકરા દીકરીને ડોક્ટર બનાવવાનું સપનું જોઈ શકે છે અને એની માની ભાષામાં એ બાળક ડોક્ટર પણ બની શકે, એ દિશામાં આપણે કામ કરીએ છીએ જેથી ગરીબના ઘરમાં પણ ડોક્ટર તૈયાર થાય। गुजराती सहित अनेक भारतीय भाषाओं में पाठ्यक्रम बनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं।
ये विकसित भारत के लिए सबके प्रयास का समय है। देश में ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो किसी भी कारण से छूट जाए। यदि नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की स्पिरिट है और इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाना है। साथियों, शिक्षा पुरातन काल से ही भारत के विकास की धुरी रही है। हम स्वभाव से ही नॉलेज के, ज्ञान के समर्थक रहे हैं और इसलिए हमारे पूर्वजों ने ज्ञान विज्ञान में पहचान बनाई। सैकड़ों वर्ष पहले दुनिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज बनाई, विशालतम लाइब्रेरी स्थापित की। हालांकि फिर एक दौर आया जब आक्रांताओं ने भारत की संप्रदा को तबाह करने का अभियान छेड़ा, लेकिन शिक्षा को उस विषय में भारत ने अपने मजबूत इरादों को न छोड़ा, मजबूत आग्रह को कभी नहीं छोड़ा। जुल्म सहे लेकिन शिक्षा का रास्ता नहीं छोड़ा। यही कारण है आज भी ज्ञान विज्ञान की दुनिया में, इनोवेशन में हमारी अलग पहचान है। आजादी के अमृत काल में अपनी प्राचीन प्रतिष्ठा को वापस लाने का अवसर है। भारत के पास दुनिया की श्रेष्ठ नॉलेज इकोनॉमी बनने का भरपूर सामर्थ्य पड़ा है। अवसर भी इंतजार कर रहे हैं। 21वीं सदी में साइंस से जुड़ी, टेक्नोलॉजी से जुड़े अधिकांश इनोवेशन, अधिकांश इन्वेंशन भारत में ही होंगे। और मैं जब कहता हूं उसका कारण मेरे देश के नौजवानों पर, मेरे देश के नौजवानों के टैलेंट पर मेरा भरोसा है। इसलिए ये कहने का मैं साहस कर रहा हूं। इसमें भी गुजरात के पास बहुत बड़ा अवसर है। अभी तक गुजरात की पहचान क्या थी? हम व्यापारी, कारोबारी, एक जगह से माल लेते थे, दूसरी जगह पे बेचते थे और बीच में दलाली से जो मिलता था उससे रोजी रोटी कमाते थे। उसमें से बाहर निकल के गुजरात धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपना नाम कमाने लगा और अब 21वीं सदी में गुजरात देश के नॉलेज हब के रूप में, इनोवेशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मुझे विश्वास है कि गुजरात सरकार का मिशन स्कूल्स ऑफ एक्सीलेंस इसी स्पिरिट को बुलंद करेगा। साथियों, मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आज आने का मौका मिला। अभी 1 घंटे पहले मैं देश की रक्षा शक्ति वाले कार्यक्रम से जुड़ा था। घंटे भर के बाद देश की, गुजरात की ज्ञान शक्ति के इस कार्यक्रम में जुड़ने का अवसर मिला है और यहां से अभी जा रहा हूं जूनागढ़, फिर राजकोट, वहां समृद्धि के क्षेत्र को छूने का मुझे प्रयास करने का अवसर मिलेगा। साथियों, एक बार फिर मैं गुजरात के विद्या जगत को, गुजरात की भावी पीढ़ी को, उनके माता पिता को आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर, यह महत्वपूर्ण अवसर है साथियों, इसके लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। भूपेंद्र भाई और उनकी टीम को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रोत्साहनपूर्ण शब्दों के लिए आपका आभार और गुजरात राज्य की समग्र शालाओं को ये अप्रतिम भेंट देने के लिए आपका, गुजरात राज्य समग्र जनता आपका फिर से आभार व्यक्त करती है। आपकी मानक उपस्थिति के